dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viewers, we are here with your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. According to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses of Al-Quran. So as usual, first we shall give you the recitation of Ayah Mubarakah number 35 and 36 of Surah Ibrahim of Al-Quran, and you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, so that God's blessings may shower upon us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق الله العظيم. Now this is the second part of our program. Now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with me. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه
فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Viewers, now this is the third segment of our program in which we are showing these verses written in Arabic scripture as well as transliterated in a Roman script for those who are unfamiliar with Arabic alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translations also. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. In Roman, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أن نعبد الأصنام. और ए हबीब, याद करो जब अर्ज की इब्राहीम ने कि ऐ मेरे रब, बना दे इस शहर को अमन वाला और बचा ले मुझे और मेरे बच्चों को कि हम पूजा करने लगे बुतों की. In English, and when Abraham said, "My Lord, make safe this territory and preserve me and my sons from serving idols." رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. In Roman, رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ए मेरे परवरदिगार, इन बुतों ने तो गुमराह कर दिया बहुत से लोगों को. In English, my Lord, lo, they have led many of mankind astray. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. In Roman, فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. बस जो कोई मेरे पीछे चला तो वो मेरा होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो उसका मुआमला तेरे सुपुर्द है. बेशक तू गफूरुर रहीम है. But whoso followeth me, he verily is of me,
And whoso disobeyeth me, still thou art forgiving, merciful. नाज़रीन किराम, हमारे सबक का आखिरी मरहला है और इस मरहले में तिलावत की गई आयात को समराइज़ करके उसके सेंट्रल पॉइंट्स को, सेंट्रल आइडियाज़ को कि क्या हमें टीच किया जा रहा है, क्या चीज़ तालीम की जा रही है, हम उसको जानने की कोशिश किया करते हैं। तो आइए सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 35 और 36 जिसकी तिलावत की बरकत और सआदतें आपने हासिल की, अब इसके बाद इसके मफाहीम और मतालिब को जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से इस आया मुबारका से हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दुआओं का जिक्र किया जा रहा है जो उन्होंने अपने खालिक तबारक व तआला से की है। और इन का आगाज़ लफ्ज़ इस के साथ हो रहा है, व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल, कि हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वक्त याद कीजिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस अंदाज से दुआ मांगी। तो लफ्ज़ इससे इन दुआओं का आगाज़ हो रहा है और इस जहाँ पर भी होता है इसकी अपनी हिकमतें हुआ करती है। इसमें कुछ चीज़ें महज़ूफ़ होती है जो ग्रामर की हुआ करती है, लिहाजा इसका मतलब ये होता है कि वो ज़िक्र याद कीजिए कि जब हमने किसी से कुछ यूँ कहा, जिस तरह सूरह बकरा के शुरू में हम देखते हैं इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ए हबीब वो वक्त याद कीजिए कि जब हमने मलाइका से कहा कि हम ज़मीन पर अपना नाइब भेजना चाहते हैं, अपना खलीफा बनाना चाहते हैं। तो मालूम ये हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अभी तख्लीक पूरी तरीके से नहीं किया गया था, महज उनका बयान जारी हुआ था और अल्लाह ने मलाइका के सामने ये बयान इरशाद फरमाया था कि ज़मीन पर खलीफा बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पर भी लफ्ज़ इस था और जगह जगह पर इसका इस्तेमाल कुरान में जा बजा हमें नज़र आता है। तो मालूम ये हुआ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो उस जानिब मबज़ूल करवाई जा रही है। तो इसका साफ़ और ज़ाहिरी मतलब ये है कि आप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब तख्लीक किया जा रहा था उससे पहले रब्बे ज़ुल जलाल आपको तख्लीक फरमा चुका था। और इसकी मुवाफ़क़त में हमें हदीस मुबारका जा बजा नज़र आती है। इरशाद हुआ कुन्तु नबिय्यन आदम बैन रूह वल जसद, कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जसद के मरहले में मौजूद थे। और एक हदीस मुबारक में आया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के मरहले में मौजूद थे। चुनांचे मालूम ये हुआ कि जब इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तख्लीक किया जा रहा था तो उससे भी पहले मेरे आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को तख्लीक किया जा चुका था। हदीस जाबिर है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अकरम से सवाल किया कि आका ये बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तमाम मखलूक़ात से पहले, हर चीज़ से पहले किस चीज़ को तख्लीक किया? तो आपने फरमाया कि ए जाबिर क़ाल अल्लाह तबारक खलक़ क़ब्ल अल अशियाई, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ से पहले खलक़ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही, कि तेरे आका के, तेरे नबी के नूर को अपने नूर के फैज़ से तख्लीक फरमाया। तो मालूम ये हुआ इसलिए कुरान में जा बजा इसकी हिकमतों के साथ तवज्जह मुस्तफ़ा मबजूल करवाई जाती है कि आपकी खलकत तो सबसे बाद में हुई, आपकी बेअसत सबसे बाद हुई, लेकिन आपकी जो तख्लीक अव्वल का मरहला था वो हमने कायनात की हर चीज़ से पहले मुकम्मल फरमाया था, इसीलिए आपकी तवज्जह बार बार मबजूल करवाई जाती है। फिर हम देखते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है और वो मक्कतुल मुकर्रमा की उस मकाम पर दुआ मांग रहे हैं कि जिस मकाम पर उन्होंने अपने शीर खार बच्चे को और इसके साथ अपनी अजीज़ ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उस मकाम पर तने तनहा छोड़ दिया था। तो आप उसके लिए दुआएं मांग रहे हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल यहाँ पर अमन कायम फरमा, रब्बे ज़ुल जलाल इस शहर को, इस चीज़ को, इस जगह को हमारे लिए महबूब बना दे और इन जगह को बुतों से पाक फरमा दे। हालांकि उस वक्त बुत वहाँ पर नहीं रखे थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और नबी का माना ही होता है गैब की खबरें बताने वाला। चुनांचे आपने जान लिया था एक वक्त आएगा कि यहाँ पर घर भी तामीर किया जाएगा और उसमें बुत भी रखे जाएंगे, इसलिए आपने ये दुआ मांगी कि रब्बे ज़ुल जलाल इस घर को, तेरे घर को इन बुतों से पाक फरमाना। आपकी दुआ मकबूल हुई और आपके 1500 साल बाद खातमुन नबिय्यीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल का नारा लगाते हुए काबतुल्लाह में दाखिल हुए और आपने अपनी छड़ी मुबारक से सारे बुतों को गिरा दिया। आप सबसे पहले बुत शिकन है जिन्होंने बुतों को गिराया। इससे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने भी गिराया था, लेकिन वो अमल चोरी छुपे था, लेकिन ये अमल बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर था और आपने तमाम कुफ़ार व मुशरिकीन के साथ
सामने उन बातिल आइडल्स को और उन बातिल माबूदों को गिरा दिया और इस कंसेप्ट और इस तसव्वुर को ख़त्म फरमा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा की फ़जीलत और उसको महबूब करने की दुआएं मांग रहे हैं। चुनांचे हम देखते हैं कि आक़ाए कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक शहर के लिए दुआ मांगी, इब्राहीम ने मक्कतुल मुकर्रमा के लिए मांगी और मेरे आका ने मदीनतुल मुनव्वरा के लिए मांगी। आपने फरमाया कि ए रब्बे ज़ुल जलाल, जिस तरह इब्राहीम ने मक्का के लिए दुआएं मांगी, तूने मक्का को महबूब बनाया, उसमें रिज़्क़ के वसी ख़ज़ाने अता फरमाए, इसी तरह रब्बे ज़ुल जलाल हमारे शहर मदीना मुनव्वरा, इसके नाप तोल के निज़ाम में बरकतें अता फरमा, इसको हमारे लिए महबूब बना। जितना तूने मक्का को महबूब बनाया, इससे भी मदीनतुल मुनव्वरा को दुगना महबूब बना। तो मालूम ये हुआ कि मक्कतुल मुकर्रमा की अपनी फ़जीलतें हैं, वो अफजल तरीन मकाम है और मदीनतुल मुनव्वरा महबूब तरीन मकाम है कि महबूब तरीन होने की दुआ आक़ाए कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और हम देखते हैं कि मदीनतुल मुनव्वरा वो मकाम है जिसको यसरब कहा जाता था। यसरब का माना है कि वो जगह जहाँ पर आफतें नाजिल हुआ करती हैं। वहाँ पर आफत क्या थी? एपिडेमिक डिजीज़ हुआ करती थी, वहाँ पर बुखार फैल जाया करता था और वो एपिडेमिक हो जाया करता था, वबाई सूरत इख्तियार किया जाता था। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सिद्दीक़ अकबर बीमार हुए, उन्हें बुखार हुआ और फिर आक़ाए कायनात ने दुआ मांगी कि ए रब्बे ज़ुल जलाल हमारे साओ मुद में बरकतें अता फरमा और मदीना मुनव्वरा को जो बुखार है रब्बे ज़ुल जलाल इसको दूसरे मकाम पर मुंतकिल फरमा दे। चुनांचे आपकी दुआएं मकबूल हुई और मदीना मुनव्वरा आज महबूब तरीन मकाम भी है और मदीना मुनव्वरा वो मकाम है जहाँ पर शिफा मिला करती है। लिहाजा वो लोग जो आज इसको यसरब कहते हैं, ये वो नाम है जो मदीना मुनव्वरा में हुजूर की आमद से पहले था, अब इसे मदीना कहा जाता है। और यसरब कहने से हमें इससे इज्तिनाब करना चाहिए। यसरब बीमारियों का घर हुआ करता है और मदीना मुनव्वरा शिफा का घर है। आक़ाए कायनात ने वहाँ पर क़याम फरमाया, वहाँ पर मस्कन है, रोज़े रसूल उस मकाम पर मौजूद है। तो मालूम ये हुआ कि शहरों की बरकतों के लिए दुआएं मांगना ये अंबिया किराम की सुन्नत हुआ करती है, हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है और आक़ाए कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। यही वजह है कि मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल होते हैं तो अल्लाह की जबरूत है, हैबत है और उसकी तजल्लियात है। वो मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते हैं तो रोज़े रसूल देख कर आँखें टपक पड़ती हैं, इसलिए कि मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि दिल धड़क रहा हो और आंखों से आंसू जारी हो। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के दुरूस को आगे बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें सही मानों में इसे तालीम करने की ख़ुद भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको भी अल्लाह तबारक व तआला कुरान की तालीम के ज़ेवर से आरास्ता व पैरास्ता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।